mass defect in nuclear fusion reaction is 0.3%. Is 0.3%. 0.3%. What amount of energy will be liberated in 1 kg fusion reaction? In 1 kg fusion reaction, mass defect in nuclear fusion reaction is 0.3%. What amount of energy will be liberated in 1 kg fusion reaction? अच्छा, इसमें ध्यान रखना, जब जनरली परसेंटेज नहीं दिया रहता है तो किसी मास का 1% ही जो है रिएक्शंस मास डिफेक्ट के रूप में काउंट करते हैं। कभी ऐसा देगा कि रेडियो एक्टिव मटेरियल जो है 2 kg है और उसने रेडियो एक्टिव फ्यूजन रिएक्शन करा तो कितना मास एनर्जी के इक्विवेलेंट होगा, तो 2 kg है तो उसका 1% लेना हमेशा, जब परसेंटेज ना दिया हो, और जब गिवन हो तो फिर बराबर जो दिया है वो। तो इस बात को ध्यान रखें, कभी कभी परसेंटेज नहीं दिया रहता है, जब परसेंटेज नहीं दिया हो तो 1% लेंगे। यहाँ 1 kg का 0.3% निकालें, जैसे mc² से निकाल दें कैलकुलेशन एनर्जी का। निकाल पाएंगे? मैं कर दूं? थ्री kg मतलब 3000 ग्राम, 3 kg के हिसाब से ही करते हैं, तो एनर्जी इक्वल टू 1 kg तक है, तो 1 kg का 0.3%, 0.3/100 इंटू 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर बराबर था। तो ये हो गया 0.3 इंटू 10⁻⁻2, 9 इंटू 10⁻16, 2.7 इंटू 10⁻14 जूल। अगला सवाल, मास 4 kg of radioactive material present, mass 4 kg of radioactive material present in reactor. What amount of energy will be liberated in the reactor? आ गया 4 kg का 1%, 4 kg का 1%, 1/100 इंटू 3 इंटू 10⁸ स्क्वायर, 36 इंटू 10⁻14। नेक्स्ट सवाल, व्हाट विल बी द एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ न्यूक्लियस इज ऑर्डर ऑफ, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ न्यूक्लियस इज ऑर्डर ऑफ। डेटा ध्यान रखेंगे, ये होता है 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एवरेज वाले। एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ न्यूक्लियस इज ऑफ ऑर्डर ऑफ, डेटा ध्यान रखना 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, एवरेज वैल्यू 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सबसे हाईएस्ट वैल्यू 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन
find the kinetic energy of positron. Kinetic energy of positron ejected due to disintegration of photon, having wavelength 310 nanometer, having wavelength 310 nanometer. वन पॉइंट 46 बराबर है 0.51, 1.02 माइनस कर लेंगे, जो बचेगा उसका आधा। लिखेंगे रेडियोएक्टिव मटेरियल हैज इनिशियल अमाउंट 16 ग्राम। Radioactive material have initial amount 16 gram. After 16 gram, after 200 days, it reduced to 1 gram. After 200 days, it reduced to 1 gram. Half life of material is 1 gram. Reduced to 1 gram. Reduced to 1 gram. Half life of material is 50। हाँ नेक्स्ट सवाल। Activity of radioactive element decreased to 1/3 of original. Activity of radioactive element decreased to 1/3 of original activity R naught. Of original activity R naught in 9 year. In 9 year, activity of radioactive element decreased to 1/3 of original activity R naught in 9 year. In 9 year. After further 9 year. After further 9 year, its activity will be. After further 9 year, its activity will be. After further 9 year, its activity will be.
1/9, हाँ R0/9। पहले 9 साल में 1/3 हो गया और अगले 9 साल में 1/3 का 1/3, 1/9 हो जाएगा। R0 से 9 साल में R0/3 हो गया। अब एक और 9 साल में 1/3 ऑफ R0/3 हो जाएगा। इसका मतलब R0/9। एक और सवाल, द एक्टिविटी ऑफ सैंपल इज 64 × 10⁻⁻5 क्यूरी। 64 10⁻⁻5 curie. Half life is 3 days. Half life is 3 days. Half life is 3 days. The activity will become 5 × 10⁻⁻6 after. Activity will become 5 × 10⁻⁻6. 5 × 10⁻⁻6 curie after. आफ्टर हाउ मेनी डेज, कितने दिनों के बाद ऐसा होगा। तो 21 डेज, 7 हाफ लाइफ लगा, नहीं 8 हाफ लाइफ लगेगा। साथ ही लग रहे हैं, ठीक है 21 ही रहेगा आंसर। $64 ग्राम से 1 ग्राम होने में 6 हाफ लाइफ लगेंगे, फिर उसका आधा वैल्यू है, 7 हाफ लाइफ, हाफ, इसलिए 10⁻⁻6 हो गया, मतलब 0.5 10⁻⁻5। सेवेंथ हाफ लाइफ लगा, ये समझ में आया। Undergoes 3 different types of decay. Certain radioactive materials can undergoes 3 different types of decay. 3 different types of decay. Certain radioactive materials can undergoes 3 different types of decay. Each with different decay constant. Each with different decay constant. Lambda, 2 lambda and 5 lambda. Lambda, 2 lambda and 5 lambda. Then the effective decay constant is equal to, effective decay constant is equal to effective decay constant is equal to, देखो एक के हिसाब से जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है, जब इसे निकालेंगे तो क्या आने वाला है, n0 e⁻ लैम्डा टी। दूसरे के हिसाब से यही n0 e⁻ 2 लैम्डा टी, या तीसरे के हिसाब से यही n0 e⁻ 5 लैम्डा टी। तो जो टोटल डिसइंटीग्रेशन है वो इस सभी का सम होगा ना, हाँ या ना। तो जिस वक्त प्रेजेंट है वो इस सभी का सम, मान लीजिए ये n1 हुआ, ये n2 हुआ और ये n3 हुआ, तो जिस वक्त ये प्रेजेंट है तो फाइनल ये तीनों का सम प्रेजेंट है। तो जो फाइनल होने वाला है dn/dt, जिसे हम लोग फिर से माइनस लैम्डा इंटू उस वक्त का फाइनल n निकालते हैं, तो उस कंडीशंस में ये सब जो है मल्टीप्लिकेशंस में आएंगे, तीनों टर्म मल्टीप्लिकेशंस में आएंगे।
वैसे ये पैरेलल रेडियो एक्टिव कॉन्सेप्ट है, नहीं आएगा अभी, तो वैसे रेडियो एक्टिव नहीं आ रहा है, लेकिन तो ये तो नहीं आएगा फिर भी। तो इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो फाइनल टर्म हो जाएगा एन नोट एन नोट एन नोट, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर जो है ऊपर जाके प्लस होने वाला। एक्सपोनेंशियल का पावर, जब एक्सपोनेंशियल किसी भी टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं उसके पावर क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं ना, जैसे एक्स, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब। तो एक्चुअली में ये क्या हो गया, एक्स टू द पावर 6। तो ये जो पावर है वो क्या हो गया, ऐड हो गया। तो वही चीज़ें, ये लैम्डा टी, ये 2 लैम्डा टी और ये 5 लैम्डा टी सब ऐड होने वाले। तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 8 लैम्डा टी। तो इक्विवेलेंट हो गया ये 8 लैम्डा। ठीक है, बिल्कुल नहीं आएगा, कर दिया मैंने आपके सामने बस।